Yes. Good morning, students. It is chapter number 10, which is straight line. Uh, in previous classes, you have completed your chapters up to chapter number 9. Now we have chapter number 10, straight line. In this chapter, we will study about the slope. First of all, what is slope? Slope is the slope. What is slope? Slope is the slantness of any line, right? So if a line makes, suppose this is x-axis and this is y-axis, if this line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, then slope of this line will be m is equal to tan theta. If a line, first case, if a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, then slope of this line is given by m is equal to tan theta. ठीक है, मतलब how slant is the line from x-axis. So it was slope of that line when any line makes an angle theta with the positive direction of x-axis. ठीक है, ये तो था slope of this line. अब है कि slope of that line which passes through 2 points. ठीक है, तो 2 points से देखो कि slope of a line which passes through 2 points. Slope of line passing through 2 points P x1 y1 and Q x2 y2. ठीक है, तो ये देखो आप, सपोज ये लाइन है P x1 y1 and this is Q x2 y2, राइट? तो ये पॉइंट P है, ये Q है. इसको अगर हम यहां ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी यहां ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखो, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने और इसको ज्वाइन करो ऐसे. तो जब ये x1 है तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास है x1, यहां से लेके यहां तक, दैट इज x1. दिस इज, ये x2 है तो दिस इज x2, तो दैट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1, राइट? ओके, तो दिस इज y2 और इतना डिस्टेंस y1 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1. ठीक है, तो PQR मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, दिस इज पॉइंट R. तो सपोज दिस इज थीटा, तो जैसे हमने पहले उसमें किया था कि स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन tan थीटा, राइट? तो जब ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, सपोज दिस इज लाइन L, इसको हम आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो स्लोप ऑफ लाइन L m is equal to tan theta, because
this line making an angle theta with the positive direction of x-axis. This is x-axis, y dash, and this is x dash, right? तो tan थीटा, tan क्या होता है देखो, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस इज PR. तो QR, व्हाट इज QR? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. तो दिस इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन which passes through 2 points P and Q, P x1 y1 and Q x2 y2. So this was the slope of that line which passes through 2 points, right? तो देखो हमने स्लोप दो केसेस में निकाले, जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल गिवन होता है और जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो हमने ऐसे निकालना है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, राइट? अब चलते हैं हम आगे. देखो 2 points, 2 lines, third point, 2 points, lines. If 2 lines are parallel, then 2 lines parallel, then क्या कंडीशन होती है देखो, तब कंडीशन देखो क्या होगा कि सपोज हमारे पास देयर आर 2 लाइन्स विच आर पैरेलल, x dash, y and y dash. Suppose this is line L1 and this is line L2. ये एंगल θ1 फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ये एंगल θ2 फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, राइट? तो 2 लाइन्स आर पैरेलल देन, यानी कि 2 लाइन्स हैविंग स्लोप्स पैरेलल देन, तो इसमें सिंस L1 is parallel to L2, ठीक है? Since L1 is parallel to L2, therefore θ1 is equal to θ2, corresponding angles. ठीक है? तो टेकिंग tan on both sides, tan θ1 is equal to tan θ2. अब tan θ1 क्या हो जाएगा हमारे पास? स्लोप ऑफ लाइन L, line L1 is equal to slope of line L2. तो इसको मैं M1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और इसको M2. तो यानी कि 2 lines are parallel, then their slopes will be equal. M1 is equal to M2 हो जाएगा, ठीक है? अब हम परपेंडिकुलर वाला केस ले लेते हैं, देखते हैं कि 2 lines परपेंडिकुलर वाला केस देखते हैं. ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश. सपोज देयर आर 2 लाइन्स, these 2 are perpendicular to each other, L1, L2, right? तो ऐसा लेते हैं कि 2 लाइन्स हैविंग स्लोप्स M1 and M2 will be perpendicular if M1 M2 is equal to -1.
जैसे पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि स्लोप, दोनों की स्लोप इक्वल होते हैं, इसमें m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। अब देखो कैसे कि स्लोप ऑफ, हम ये क्या है हमारे पास, इसको मैं θ1 ले लेता हूं और इसको θ2 ले लेता हूं, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से होना चाहिए ना, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 is equal to m1 और which is equal to tan θ1, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 is equal to m2 which is tan θ2, राइट। अब इसके लिए नाउ इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को, तो θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1, ठीक है। अब टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस θ1, तो tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस θ माइनस cot θ, ठीक है। और tan θ2 इज इक्वल टू -1 अपॉन tan θ1, तो tan θ2 क्या है, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, tan θ1 क्या था हमारे पास, m2 था ना, तो विच इम्प्लाइज m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इट मीन्स what will be the condition of slopes of two lines when they are perpendicular to each other? That will be m1 m2 is equal to -1. So that is the condition for two perpendicular lines. Yes, now we have one more point, fourth point. What is fourth point? Fourth point is angle between two lines, right? तो क्या होता है कि if theta is the angle between two lines having slopes m1 and m2, then having slopes m1 and m2, then क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 टू द मॉड। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम, कि ये है हमारे पास टू लाइंस, सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, दिस इज लाइन L1 और ये हो जाएगा L2, राइट। और सपोज दिस लाइन L1 मेक्स एन एंगल θ1 इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दिस लाइन another line L2 makes an angle θ2 with the positive direction of x axis. Then again this triangle, suppose this is ABC, so consider this triangle, in triangle ABC we have θ2 is equal to theta plus θ1, because exterior angle of a triangle is equal to sum of the opposite interior angle. तो अब मैं थीटा को ले सकता हूं,
कैन बी रिटन एज θ2 माइनस θ1, राइट. अब टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1. तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. दिस वाज tan थीटा. ठीक है. अब tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज 2 वाज m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2. m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2. तो इसके लिए अब इसमें अभी हमारे पास ये आया, अभी हमने मॉड नहीं लगाया m2 माइनस m1, बट अब हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये भी होता है ना, ये तो इन दोनों एंगल के बीच का है 180 माइनस थीटा. अब हम 180 माइनस थीटा को हम θ1 प्लस θ2 इस तरह से करेंगे तो हमारे पास जो दूसरा वाला आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा. तो दैट्स वाई जो tan थीटा का एंगल फॉर्मूला हो जाएगा, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan दिस इज 180 माइनस θ1, ये भी उनके बीच का एंगल है, इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सॉरी 180 माइनस थीटा. तो tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो माइनस ऊपर हो जाएगा. तो tan 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो आपको पता है कि ये भी m2 इसकी वैल्यू है, ये भी है, तो इसमें प्लस माइनस मॉड आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो दैट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, तो आपने ये यूज करना है. तो बेटा आपकी क्लास में, आज की क्लास में आपने क्या करना है, सिर्फ क्योंकि नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है, तो आपने क्या करना है कि इसमें सिर्फ आपने ये डेरिवेशन देखना है, फिर इसको समझ के अपनी नोटबुक में लिखना है और मेरे को सेंड कर देना है. इतना ही करेंगे, और एग्जाम्पल हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो आई थिंक दैट इज, क्योंकि आपका पेपर भी है, तो इसके लिए इसका मतलब आज के लिए बहुत ही है मैथ्स में. तो ठीक है, तो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.